Hello, everyone. So, in this portion of the lecture, we'll be covering with this topic of longitude and time. Previously, we covered your topic of longitudes. What are longitudes? And I explained you that these are the vertical lines that you can see on the globe. These are imaginary lines not created by human beings. Okay, not created exactly on the Earth's surface. ऐसा कुछ भी नहीं है. Just it is like human beings ने इसको create करा है for their understanding, for the reference. ठीक है, जोग्राफर्स ने इसको बनाया है. These are only the reference lines that we take for our studies. Okay, these are created by human beings. These are not naturally present on the earth's surface. Okay, so I repeat my sentence again, that these are the vertical lines that you can see. ये imaginary lines होती हैं जो humans ने बनाई है, so that we can consider these lines for our studies. हमें हमारी अर्थ को स्टडी करना है, सो उसको स्टडी करने के लिए ये रेफरेंस लाइंस होना बहुत जरूरी है. ठीक है, and these longitudes help us to identify, to calculate the time. ये longitude हमें help करता है time calculate करने में. ठीक है, so in this portion of the topic that we'll be covering, this is the longitude and time. Okay, so इस lecture series में, इस particular lecture में हम cover करने वाले हैं आपका longitude and time. Okay, so I hope that you're clear with what are longitudes. Longitudes क्या होते हैं. Okay, and if you have gone through the last lecture, previous lecture of what are longitudes very clearly, you will be able to understand. Now we come to longitude and time. The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. अगर हमें time measure करना है, so the best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. ठीक है, so जो earth का movement है, आपको पता है earth आपका west to east move करती है. Then the movement of the moon and the movement of the planets, so these can be used as for measuring the time. The sun regularly rises and sets every day. You know this, that sun जो है वो regularly rise करता है. It shines, it rises every day and it sets every day. And naturally, it is the best timekeeper throughout the world. और अगर देखा जाए तो sun is the best timekeeper throughout the world, because this is something which is universally available to everyone, right? And it is rising every day, it is setting down every day. So this is something which is very, very interesting, that one can note down the time, one can identify the time with the help of the movement of the sun. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is shortest at the noon and longest at sunrise and sunset. तो जब आपका sun rise करता है, ठीक है, and when your sun sets, आपको पता है shadows दिखाई देती हैं हमें. ठीक है, whenever we are under the light, जब भी हम light के contact में होते हैं, तो आपकी एक shadow create होती है. Every object has its own shadow. इन द सिमिलर मैनर आप देखते हैं कि जब सनलाइट के रेफरेंस में, सनलाइट के कांटेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका एक शैडो क्रिएट होगा. सो ड्यूरिंग द rise of the sun and during the sunsets, rising of the sun and setting of the sun, we see that the shadow, it is longest. शैडोज जो होंगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो सबसे ज्यादा लॉन्ग होंगी इस समय. एंड अगर आप देखते हैं 12 नून, सो 12 नून पर आप देखेंगे द शैडो विल बी वेरी वेरी शॉर्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि अभी क्या टाइम हो रहा होगा. वॉचिंग एट द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. इफ यू सी दैट अभी बहुत लंबी सी अगर आपको शैडो दिखाई देती है, सो यू विल आइडेंटिफाई ओके इट्स द मॉर्निंग टाइम, ये मॉर्निंग टाइम है. देन अगर नून टाइम हो रहा होगा तो आपको पता लग जाएगा that the shadow will be shortest. Shadow जो है वो shortest होगी. So you will be able to identify it as noon. And again at the sunset, during the sunset, you will see that the shadow will again be long. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridians will have midday or noon. So prime meridian हमारा कहाँ से पास होता है. ठीक है, प्राइम मेरिडियन इज a 0 degree longitudinal line that is passing from the center. वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लॉन्गिट्यूड है.
जो 0 डिग्री से बिल्कुल क्रॉस करता है, और इसको हमने नाम दिया प्राइम मेरिडियन का। सो प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच ये कहाँ से पास करता है? ग्रीनविच से पास करता है। ग्रीनविच एक टाउन का नाम है। ओके, इट हैज द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई। तो मान लीजिए अगर सन यहाँ पर होता है, इफ द सन इज एट ग्रीनविच, okay, so when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. तो जितनी भी प्लेसेस इसके आसपास में होंगी, या जितनी भी प्लेसेस आप देखते हैं 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन पर जितनी भी प्लेसेस आ रही होंगी, उन सभी प्लेसेस पर मिड डे या फिर नून होगा। ऑल दोज प्लेसेस विल बी अंडर मिड डे टाइम और नून टाइम। क्लियर? As the earth rotates from west to east, you know that हमारी earth west to east rotate करती है। Okay, so those places which are east of Greenwich will be ahead of the Greenwich time and those to the west will be behind it. So क्योंकि हमारी अर्थ आप देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ इज वेस्ट टू ईस्ट, राइट? सो दिस इज योर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, या फिर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच से क्रॉस करता है। ग्रीनविच एक टाउन का नाम है आपका इंग्लैंड में। यहाँ से ग्रीनविच से आपका प्राइम मेरिडियन क्रॉस करता है। सो ग्रीनविच के ईस्ट में दिस विल बी योर ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस विल बी योर वेस्ट। सो ग्रीनविच के ईस्ट में जितनी भी प्लेसेस होंगी वहां पर टाइम अहेड होगा, दैट मीन्स वहां पर टाइम आगे चल रहा होगा। एंड जितनी भी प्लेसेस ग्रीनविच के वेस्ट में है वहां पर टाइम पीछे होगा, द टाइम विल लैग बिहाइंड। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो ये जो आपको डिफरेंस दिखाई देता है, ग्रीनविच के ईस्ट में टाइम विल बी अहेड एंड ग्रीनविच के वेस्ट में टाइम विल लैग बिहाइंड। ओके, से फॉर एग्जाम्पल अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर यहाँ पर अगर 12 बज रही होगी, ठीक है, तो ईस्ट में अगर आप देखेंगे, सो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट पर आपके 1 o'clock हो रही होगी, 1 PM, ठीक है, एंड वही 15 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री वेस्ट इट विल बी 11 PM। सो दिस इज हाउ यू सी लॉन्गिट्यूड्स की वजह से टाइम डिफरेंस आता है, ठीक है। एंड ग्रीनविच जो है हमने उसको एक रेफरेंस लाइन माना है जहां से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। सो जितनी भी प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में होंगी वो सारी की सारी प्लेसेस अहेड होंगी, वहां पर टाइम आगे रहेगा। पॉजिटिव यू कैन से द टाइम विल बी अहेड एंड ऑल दोस प्लेसेस विच विल बी वेस्ट, ग्रीनविच के वेस्ट में, they will all be lagging behind. So say for example this map you can see here, इस मैप को देखें आप यहाँ पर, और इस मैप से आप समझ सकते हैं, यू कैन सी द लोकेशन ऑफ ग्रीनविच। यहाँ पर आपको पता है ग्रीनविच कहाँ है, दिस इज ग्रीनविच, दिस इज योर ग्रीनविच लाइन, ठीक है। नाउ जितनी भी प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में है, दिस इज व्हाट ईस्ट, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, एंड दिस इज योर वेस्ट, ठीक है। सो यू कैन सी हियर इट इज रिटन अहेड, दैट मीन्स जितनी भी प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में है वहां पर टाइम आगे रहेगा, इट विल बी मूविंग अहेड एंड द टाइम विल बी लैगिंग बिहाइंड वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, ठीक है। सो इधर टाइम वी कैन से माइनस में और इधर टाइम आपका पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो यू कैन सी दिस मैप। इस मैप से फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मच ओनली, दैट ग्रीनविच के ईस्ट में टाइम विल बी मूविंग अहेड, ठीक है, एंड ग्रीनविच के वेस्ट में टाइम विल बी लैगिंग बिहाइंड और टाइम विल बी बिफोर। ऑलराइट, सो अगर ग्रीनविच पर यहाँ पर मिड डे हो रहा है या नून हो रहा है, तो ये ग्रीनविच से जितनी भी प्लेसेस हैं, ग्रीनविच पर जितनी भी आपकी प्लेसेस हैं वहां सब जगह नून हो रहा होगा, या वहां सारी प्लेसेस पर 12 बज रही होगी, दिस इज इट, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर सब जगह क्या है, 12 बज रही होगी। देन अगर हम आगे मूव करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल इफ वी मूव ईस्टवर्ड साइड, तो यू विल सी दैट यहाँ पर 1 डिग्री पर 2 डिग्रीज, 3 डिग्रीज, 4 डिग्रीज, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते करते अगर आप देखते हैं तो हर 15 डिग्री लैटिट्यूड पर आप देखेंगे कि आपका टाइम 1 आवर से डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशन है, इस पूरी कैलकुलेशन को भी हम समझने वाले हैं। ओके, सो यू विल सी दैट टाइम इज जस्ट नाउ, फॉर नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, ईस्ट में टाइम अहेड है और वेस्ट में आपका टाइम पीछे है, ठीक है। ओके,
ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। सो अब यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन दे रखी है, इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से समझेंगे। दिस कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आगे जाकर के आर कंट्री इंडिया चैप्टर स्टडी करेंगे, दिस कैलकुलेशन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स, सो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड फॉर द फर्दर चैप्टर्स ऑल्सो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस कैलकुलेशन, आपको ये कैलकुलेशन याद होनी चाहिए। ओके, नाउ सी, the rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degrees in about 24 hours. ठीक है, अर्थ आपको पता है रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन है, क्लियर। एक सर्कल जो होता है, उस सर्कल की टोटल डिग्रीज कितनी होती है, 360 डिग्री। अ सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री। सो जब अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्रीज कवर करती है। टोटल कितनी डिग्रीज कवर करेगी, 360 डिग्रीज। और कितने घंटे में कवर करती है, 24 आवर्स में। 24 आवर्स में 360 डिग्री, दैट मीन्स वन डे 360 डिग्रीज, क्लियर। विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, जिसका क्या मतलब हो गया, 15 डिग्रीज एन आवर। ओके, 15 डिग्री पर आवर, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। दैट मीन्स अगर आपकी अर्थ से फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आपकी अर्थ अगर 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जाती है, दैट मीन्स ये जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस जो आ रहा है, ओके, सो ये आपकी अर्थ को 4 मिनट लगते हैं कवर करने में। सो अर्थ रोटेशन फ्रॉम 1 डिग्री टू 2 डिग्री इन 4 मिनट्स। सो 4 मिनट्स में आपकी अर्थ 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर आती है, ठीक है। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degrees east of Greenwich will be 15 into 4, 60 minutes. That is 1 hour ahead of Greenwich, which means 1 p.m. But 15 degree west of Greenwich, the time will be behind by 1 hour. It will be 11 a.m. Similarly, at 180 degrees, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. ठीक है, सो अगर 12 नून हो रही है आपकी ग्रीनविच पर, दैट इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, सो यू विल सी 180 डिग्रीज पर मिडनाइट हो रही होगी। ओके, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस कैलकुलेशन, इस पूरी कैलकुलेशन को हम समझते हैं सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज दिस कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कैलकुलेशन आपको हमेशा काम आने वाली है। दिस इज लाइक समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम हम कर रहे हैं टॉपिक, यहां से देखेंगे नोट से। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ, दिस आई टोल्ड यू, द अर्थ, द मून और द प्लैनेट्स। सन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द टाइम, दिस ऑल्सो आई डिस्कस। सन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स है जिसके द्वारा हम टाइम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। द सन रेगुलरली राइजेस एंड इट सेट्स एवरी डे, and naturally it is best time keeper throughout the world. Local time can be reckoned by shadow cast or by the sun, a shadow casted by the sun, which is shortest at the noon and longest at sunrise and sunset. यहां तक आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सन की मदद से भी हम टाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। शैडो को देखा जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है उन ऑब्जेक्ट्स की आप शैडो को ऑब्जर्व करें, यू विल एबल टू कम कितनी बज रही होगी। Okay, so when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places which are east of Greenwich will be ahead of the Greenwich. क्योंकि आपको पता है west to east earth का rotation है, so जितनी भी places Greenwich के east में है, they will be ahead of the Greenwich, and जितनी भी places आपके Greenwich के west में आती हैं, वो पीछे चलेंगे, टाइम वहां पर पीछे रहेगा, ठीक है। सी दिस इज द मूवमेंट ऑफ योर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट, राइट। नाउ सी द कैलकुलेशन, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट में जितनी भी प्लेसेस है दे विल बी अहेड, एंड वेस्ट में जितनी भी प्लेसेस होंगी दे विल बी बिहाइंड। नाउ द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब ये जो डिफरेंस है इसे कैलकुलेट कैसे करा जाता है, देखो। In 24 hours, 360 degree rotation of the earth. This I explained you. Earth
पूरा तो पूरा जब एक राउंड कवर करती है, जो अर्थ का आपका मूवमेंट है वो एक पूरा सर्कल मूवमेंट है, सर्कुलर मूवमेंट है। सो सर्कुलर मूवमेंट दैट मीन्स 360 डिग्रीज कवर करना। 360 डिग्रीज आपकी अर्थ कवर करती है इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स का क्या मीनिंग हो गया? वन डे, वन डे, बिकॉज एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। सो दैट मीन्स इन अ डे, पूरे एक दिन में आपकी अर्थ कितने डिग्रीज कवर कर लेती है? 360 डिग्रीज। 360 डिग्री रोटेशन इज डन। आई एम एक्सप्लेनिंग इट यू वेरी वेरी स्लोली, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब अगर ये 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेशन करती है तो एक घंटे में कितना करेगी? इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई, से फॉर एग्जांपल अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है पूरे दिन भर में, तो एक घंटे में इसका रोटेशन कितना होता है? सो इन 1 आवर व्हाट यू विल डू, 360 को हम डिवाइड करते हैं 24 से, यू विल गेट 15। सो 1 आवर के अंदर 15 डिग्री रोटेशन, दैट मीन्स एक घंटे के अंदर अर्थ कितना रोटेट कर रही है, कितने डिग्रीज कवर कर रही है? 15 डिग्रीज कवर करती है। ठीक है, ओके। और वी कैन से दैट, अब आपको पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, राइट? सो 1 आवर हैज 60 मिनट्स। ओके, नाउ अगर हमें देखना है कि अर्थ 1 डिग्री में, 1 डिग्री कितने मिनट्स में कवर करती है, सो व्हाट यू विल डू। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 1 आवर में आपको पता लग गया, 1 आवर के अंदर अर्थ का रोटेशन कितना है? 15 डिग्रीज। दैट मीन्स एक घंटे के अंदर अर्थ आपके 15 डिग्रीज तक मूव कर जाती है। अब हमें पता करना है कि 1 डिग्री में अर्थ कितनी देर में मूव करेगी। 1 डिग्री क्रॉस करने में अर्थ को कितनी देर लगती है? से फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देन दिस इज योर 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देन वी हैव 3 डिग्रीज। तो अर्थ को 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पर जाने में कितनी देर लगती है? सो अर्थ को 1 डिग्री से दूसरे डिग्री जाने में 60/15 अगर हम डिवाइड करते हैं, 60 मतलब 1 आवर में आपके कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट्स, राइट? एंड 15 डिग्री कहां से आया आपका? यहां से, बिकॉज एक घंटे में आपकी एक घंटे में अर्थ 15 डिग्रीज कवर करती है, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो जब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 60/15, तो यू विल गेट 4 मिनट्स। दैट मीन्स कि 1 डिग्री रोटेशन इज इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जाने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट्स लगते हैं? 4 मिनट्स लगते हैं। हाउ मच टाइम? 4 मिनट्स। ठीक है, सो 1 डिग्री टू सेकेंड डिग्री टू थर्ड डिग्री, दैट इज 4 मिनट्स, देन 4 मिनट्स, देन 4 मिनट्स। सो यू कैन सी अर्थ का रोटेशन कितना है। दैट मीन्स अर्थ को 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पर आने में कितने मिनट लग रहे हैं? 4 मिनट लग रहे हैं। हाउ मेनी मिनट्स? 4 मिनट्स। क्लियर? दैट इज वाई यू सी दैट जब 12 नून होती है ग्रीनविच पर, सो टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी, अगर प्राइम मेरिडियन, ये जो आपका प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो कि आपका ग्रीनविच से निकलता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 नून हो रही है, ठीक है, तो 15 डिग्री ईस्ट पर टाइम क्या होगा? हाउ विल यू कैलकुलेट? सो आप इस 15 डिग्री को इंटू 4 कर देंगे। क्यों करेंगे हम 4? बिकॉज 1 डिग्री से सेकेंड डिग्री पर जाने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं, राइट? सो आप ऐसे कोई भी टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट एनी टाइम। ग्रीनविच पर से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ग्रीनविच पर यहाँ पर 1 बज रही है, से फॉर एग्जाम्पल ग्रीनविच पर कितना टाइम हो रहा है? 1 PM। तो 15 डिग्रीज पर कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ टाइम चेंज तो होगा ना, ग्रीनविच पर टाइम भी चेंज होगा। ओके, सो यू विल कैलकुलेट दैट। सो 15 डिग्रीज पर कितना हो जाएगा? 1। हाउ यू विल कैलकुलेट? इट विल बी 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो यू विल सी दैट it will be 15 into 4, you will see 60 minutes। 60 minutes का डिफरेंस यानी कि 1 आवर डिफरेंस। सो 15 डिग्री पर कितनी बजेगी? 2। इट विल बी 2 PM over here। सी आई एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन, आप ध्यान से इसको सुने कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ये आपका ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन है, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री,
ठीक है। तो जब 0 डिग्री से हम 1 डिग्री पर जाएंगे तो 1 डिग्री पर मूव करने में अर्थ को कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो ऐसे करके अगर 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट करते करते अगर हम 15 डिग्री तक जाते हैं तो अर्थ को टोटल कितने मिनट्स लगते हैं, 60 मिनट्स लगेंगे। दैट मीन्स कि हर 15 डिग्री पर 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। ओके, 0 to 15 डिग्रीज 1 आवर डिफरेंस, फिर 15 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज अगेन 1 आवर डिफरेंस। तो दैट मीन्स अगर कोई प्लेस आपकी यहाँ पर 30 डिग्रीज पर हुई तो वो वहां पर कितनी बजेगी, अगर ग्रीनविच पर 12 बज रही है और 15 डिग्री पर आपके 1 बज रही है तो 30 डिग्रीज पर जो भी प्लेसेस होंगी वहां पर 2 बज रही होगी। बिकॉज यहाँ पर टाइम क्या है आपका, अहेड मूव करता है, पॉजिटिव में मूव कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वेस्ट में चलते हैं, दिस इज योर वेस्ट, तो अगर यहाँ पर हम 15 डिग्रीज पर टाइम देखेंगे सो क्योंकि 1 आवर का डिफरेंस है, राइट, 1 आवर डिफरेंस इज देयर। सो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर अगर 12 बज रही है तो वेस्ट में 15 डिग्रीज पर 11 बज रही होगी। वहीं अगर आप 30 डिग्रीज पर चले जाएंगे वेस्ट में तो 30 डिग्रीज पर अगेन 1 आवर बैक इट विल बी 10 PM, 10 AM सॉरी, इट विल बी 10 मॉर्निंग। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टाइम, ऐसे टाइम कैलकुलेट करा जाता है। ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन पर जो भी टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग हम ईस्ट एंड वेस्ट के टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ईस्ट में आपका टाइम अहेड रहेगा, वेस्ट में आपका टाइम पीछे चलता है। ओके, ग्रीनविच मेरिडियन पर यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल अगर 12 बज रही होगी तो 15 डिग्रीज पर आपके 1 PM होगी। ओके, ऑल राइट, so time will be 15 into 4, 60 minutes. That means 1 hour ahead of Greenwich. 1 घंटे का डिफरेंस है, 0 से लेके 15 डिग्री तक 1 आवर डिफरेंस आ रहा है। आप 0 to 1 डिग्री भी कर सकते हैं, 0 to 2 डिग्रीज भी ले सकते हैं, 3 डिग्री भी हो सकता है। तो 0 से लेके 1 डिग्री पर कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इट विल बी 12:04। तो कितनी बज रही होगी यहाँ पर, 12:04, इट विल बी 12:04। अगर हम 0 डिग्री से 1 डिग्री पर जाते हैं, ठीक है, दिस इज योर से फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री, तो आपको पता है 4 मिनट का डिफरेंस है। 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पर जाने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो जब अभी अर्थ आपकी 0 डिग्री पर है और अर्थ 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री पर आती है तो इसको कितने मिनट लग रहे हैं, 4 मिनट लग रहे हैं। और 0 डिग्री पर अभी 12 बज रही है, सो टाइम कितना हो जाएगा आपका, 12:04। 12:04 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें 2 डिग्रीज, तो जब आपकी अर्थ इस 1 डिग्री से 2 डिग्री पर जाएगी अगेन 4 मिनट्स, फिर से आप 4 मिनट्स ऐड कर देंगे, तो दिस विल बी योर 12:08। 12:08। आई यू गेटिंग इट? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, यू विल बी एबल टू गेट इट। प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, इस लेक्चर को आप ध्यान से सुने। ओके, but at 15 degree west of Greenwich the time will be behind, the time will be behind by 1 hour. Okay, so अगर ग्रीनविच पर 12 बज रही होगी तो वेस्ट में टाइम आपका पीछे मूव करता है और वहां पर आपकी 11 बज रही होगी। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टाइम विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। हम लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से इस तरीके से टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ऑल राइट, at any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. तो जितनी भी places होंगी एक specific meridian पर, उस specific meridian पर जितनी भी places आ रही होंगी, जितने भी countries आ रहे होंगे, वहां पर local time same होगा। It is so interesting, you know, it is so interesting. I know according to class 6 level आप इतना भी नहीं understand कर पाएंगे इस चीज को, but it is amazing to know that how we calculate time. आज जो आप टाइम देखते हैं, आपकी क्लॉक्स में जो आप टाइम देखते हैं, ठीक है, the watches that you use and you see time, but उस टाइम को कैलकुलेट करना भी तो आना चाहिए, right? So it is so interesting to understand that how we calculate time. कौन सी रेफरेंस लाइन है जो हमें टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करती है? सो इट इज योर लॉन्गिट्यूड विच हेल्प्स यू इन कैलकुलेटिंग द टाइम। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि आप ये कैलकुलेशन बताएं पूरी कि आप टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
So the notes that I have presented you over here, आप इन notes को as it is note down कर लें. This is very very important. Okay. आप इन notes को as it is note down कर लें और इसी format में आप इस answer को explain करके आएं. So it will be easier for you. I hope that now it is clear to you. Earth 24 hours में 360 degrees cover करेगी, तो 1 घंटे में Earth कितना cover करेगी? 1 hour में Earth 15 degrees cover करती है. ठीक है, 1 घंटे में Earth 15 degrees तक मूव कर जाती है. लेकिन अगर हमें पता करना है कि 1 डिग्री कवर करने में अर्थ को कितनी देर लगती है, तो हम क्या करेंगे? आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. और यहाँ आपको 1 घंटे में कितने डिग्री तक पहुंच रही है? वो 15 डिग्री तक. तो हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं और आपको पता लग जाता है कि 1 डिग्री कवर करने में अर्थ को 4 मिनट्स लगेंगे. एंड वी यूज दिस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ एनी प्लेस. हम किसी भी प्लेस का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी लॉन्गिट्यूड के जस्ट जो भी लॉन्गिट्यूड है उस लॉन्गिट्यूड का हम टाइम कैलकुलेट करके बता सकते हैं. एंड यू सी दैट इस लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी कंट्रीज होंगी उन सभी कंट्रीज का टाइम, लोकल टाइम सेम होगा. क्लियर? सो प्लीज डू लिसन दिस अगेन. आप इसको ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम वाला टॉपिक. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so with this we finish your longitude and time and we'll proceed with the next topic of why do we have standard time. क्यों standard time होता है, क्यों जरूरी है, वो हम next part में cover करेंगे. Okay, so thank you everyone. Have a good day.